Hello everyone, this is CA Prajakta Mundhe. So continuing the discussion of revision test papers, हमने DT का पार्ट कंप्लीट किया था. अब हम GST पर चल रहे हैं. Again हम objectives से शुरुआत करेंगे. So let us start with the objectives of GST as provided by the institute in the RTP for May 21 attempt CA Inter. चलिए, so ओपन कर लेते हैं हम लोग हमारी revision test papers. Now, so शुरुआत करते हैं GST के objectives. Messrs Aditi and Company, a partnership firm registered under GST, is undertaking various government projects. The firm has let out on hire the following vehicles: a motor vehicle to carry more than 15 passengers to state government electricity department, an electric motor vehicle to carry out more than 12 passengers to local municipal corporation, an electrical vehicle to carry up to 12 passengers to state transport undertaking. The firm provided the following additional information for the month of October. Works contract services were availed for construction of immovable property being plant and machinery where the value of GST was 1,10,000. Immovable property के लिए construction services लिए हैं, works contract services लिए हैं, but immovable property is plant and machinery. ठीक है. GST amounting to 70,000 was paid on amount of demand of the department due to the frauds and returns. Goods valuing 10 lakhs, GST on the same is 1 lakh, were received 180 days ago. Invoice was also issued on the date of supply for which payment has been made till date to an extent of 4 lakh, that is 40,000. 1 लाख का बिल था 180 दिन पुराना, लेकिन उस पर अभी तक सिर्फ 40,000 का ही पेमेंट हुआ है, मतलब 40,000 का टैक्स कॉम्पोनेंट एंड 4 लाख का बिल कॉम्पोनेंट. The firm has made 2 independent outward supplies in which value of supply was understated in one case by 75 and overstated in 45,000 in the other case. Firm received certain supply goods from registered persons on which tax was payable under reverse charge. All the amounts are exclusive of taxes. All transactions referred to are intra-state. All the conditions for availing ITC have been fulfilled in the information given above. From the following information, choose the most appropriate answers. Okay, first, in respect of letting out on hire by the firm, services that are exempt from GST are कौन सी services exempt है? First, letting on hire a motor vehicle to state electricity department जिसकी वैल्यू है मतलब जिसके पैसेंजर्स हैं more than 15. Letting on hire electronic vehicle to local municipality जिसके पैसेंजर्स हैं more than 12 and state transport undertaking में less than 12 दिया हुआ है अपने को. तो exempt कौन सा रहेगा, याद करें हम वो पॉइंट exemption वाला. अगर आप मोटर व्हीकल या कोई स्पेसिफिक जो मोटर व्हीकल्स अलाउड है, जो व्हीकल्स अलाउड है, अगर हम उन्हें रेंट करते हैं तो किस किस केस में हमें एग्जेम्पशन अलाउड होती है. सो लेट अस फर्स्ट वंस रिवाइज, उन पॉइंट्स को एक बार वापस से रिवाइज भी कर लेते हैं एंड फिर हम ये क्वेश्चन देखेंगे तो हमें और प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा. सो जो सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, services by way of given on hire to a state transport undertaking a motor vehicle but it should carry more than 12 passengers. तो state transport undertaking को अगर motor vehicle दिया है तो more than 12 होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है. नेक्स्ट उसके अलावा local authority को अगर आप दे रहे हो an electrically operated vehicle meant to carry more than 12 passengers, तो हाँ ये वाला पॉइंट हमारा सेटिस्फाई हो रहा है. तो हमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें हमारा जो सेकंड वाला पॉइंट है, अगर आप वो देखेंगे तो सेकंड पॉइंट में यही चीज लिखी हुई है. क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में, देखो, लेटिंग ऑन हायर एन इलेक्ट्रिकल व्हीकल टू लोकल म्युनिसिपैलिटी मोर देन 12 पैसेंजर्स, सो यस दिस विल बी एग्जेम्प्ट. नेक्स्ट, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी टू बी क्लेम्ड ऑन द मंथ ऑफ अक्टूबर. चलो, तो क्या दिया है, सबसे पहला है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. वैसे ये ब्लॉक क्रेडिट में रहेगा. इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लिए हैं तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ पर लिखा है बीइंग प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो. सो आईटीसी कैन बी क्लेम. तो हम आंसर्स भी लिखते जाते हैं. फर्स्ट वाले का आंसर है बी. एज सच ये अपने को एग्जेम्पशंस की लिस्ट से देखकर हम समझ सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा सेकंड. तो कौन से आईटीसी हमने क्या क्या इनपुट सर्विसेज लिए हैं, क्या क्या टैक्सेस पे करे हैं. तो सबसे पहला जो हमने टैक्स पे करा है, हाँ, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज वर अवेल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग 1,10,000. तो ये तो मिल जाएगा क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी प्लांट एंड मशीनरी इसलिए मिल जाएगा 1,10,000 का. 70,000 वॉज पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिमांड ड्यू टू फ्रॉड्स
तो अगर आप फ्रॉड वगैरह के अगेंस्ट, आपकी डिमांड के अगेंस्ट ऐसे किसी केस में टैक्स पे करते हो तो उसका क्रेडिट आपको नहीं दिया जाता है, ब्लॉक्ड है। नेक्स्ट, गुड्स वैल्यू 10 लाख, 1 लाख का जीएसटी था जो कि 180 दिन पहले मिले थे अपने को, और अभी तक अपन ने 40,000 का पेमेंट कर दिया है। तो अगर आपको याद होगा, हम एक बार फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप किसी से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो जिस पर आपको आईटीसी क्लेम करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी कंसिडरेशन है, जो भी पेमेंट है, वो आपको 180 डेज के अंदर कर देना है। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी आउटपुट में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा, जितने का आपने पेमेंट नहीं किया है उतना अमाउंट आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 1 लाख का जीएसटी कॉम्पोनेंट था, और ये जो बिल है वो 180 दिन पुराना है। मतलब जिस समय का ये बिल होगा, जिस मंथ में वो बिल की डेट आ रही होगी, हम ऑलरेडी क्रेडिट तो क्लेम कर चुके होंगे उसी समय पर, क्योंकि बिल तो तब का ही है। पर पेमेंट हमें कितने दिन के अंदर करना था? 180 दिन के अंदर करना था। और क्योंकि हमने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, हमने सिर्फ 40,000 का पेमेंट करा है, तो 60,000 हमारे क्रेडिट में ऐड हो जाएगा। मतलब बेसिकली हमारी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। उसके अक्टूबर के क्रेडिट से कोई भी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है रिलेशन? क्योंकि ये 1 लाख आप क्लेम पहले ही कर चुके हो। जब का ये बिल होगा 180 दिन पहले का, जब जिस महीने का ये बिल है, हम ये 1 लाख ऑलरेडी क्लेम कर चुके होंगे। हाँ, पर इस 1 लाख के ऊपर जो अमाउंट हमने पे नहीं किया है उतना क्रेडिट रिवर्स इन द सेंस हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होगा इस बार अक्टूबर में, बट उसका हमारे आईटीसी क्लेम करने से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हमको 1,10,000 का आईटीसी मिल जाएगा। उसके अलावा हम कोई और आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में 70,000 दिया है, 1 10 1 80, तो 1,10,000 दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का। जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी 1,10,000। अब आ जाते हैं थर्ड पर। तीसरे वाला, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर हमारा वो वाला केस आएगा कि ऐड कितना करना पड़ेगा अपने को? 60,000, क्योंकि 1 लाख में से 180 दिन में अपन ने 40,000 पे कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो। जब आपने 180 दिन पहले जब वो बिल मिला होगा 60 आप क्लेम कर चुके हो। पर क्योंकि अब आपने इस पे 180 डेज के अंदर ये नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया है 60,000 का, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में इसको ऐड कर दिया जाएगा। तो कितना अमाउंट आएगा? 60। थर्ड का आंसर विल बी बी 60,000। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या पूछा है कि जो चीजें नीचे लिखी हुई थी 60,000, नीचे लिखा हुआ था कि एक जगह हम सप्लाई हमने अंडर स्टेट कर दिया है और एक जगह हमने सप्लाई ओवर स्टेट कर दिया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी इशूड बाय द फर्म फॉर अंडर स्टेटमेंट एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइस वैल्यू। कितने का अंडर स्टेटमेंट है? देखिए, in which supply was understated by 75,000 and overstated by 45,000। अंडरस्टेटेड करा है अपन ने। अंडरस्टेट मतलब जितने का सप्लाई दिखाना चाहिए था उतने का नहीं दिखाया, कम का दिखाया, और ओवरस्टेट करा है 45,000 का। तो कब डेबिट नोट इशू होगा, कब क्रेडिट नोट इशू होगा? हमेशा मैं आपको बताती हूँ इसका सबसे आसान तरीका याद रखने का। जब आप कस्टमर को डेबिट करना चाहते हो तब डेबिट नोट, जब आप कस्टमर को क्रेडिट करना चाहते हो तो क्रेडिट नोट। अगर हमने सप्लाई अंडर स्टेट किया है, मतलब हमने सप्लाई मतलब एंट्री, अगर हम जनरल अकाउंट के हिसाब से, अकाउंट के हिसाब से बात करें तो हमने बुक्स में एंट्री करी होगी डेटर टू सेल्स, कम अमाउंट से हुई, बढ़ानी है, डेबिट करना पड़ेगा, डेटर डेबिट होगा क्योंकि हम वैल्यू बढ़ाएंगे सप्लाई की, तो हमें डेबिट नोट इशू करना है, एंड वाइस वर्सा उल्टे केस में क्रेडिट नोट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? डेबिट नोट विल बी इशूड फॉर 75,000 एंड क्रेडिट नोट फॉर 45,000। देख लें 1 और 4, तो ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन मैच होगा वो है सी, दैट इज डेबिट नोट विल बी इशूड फॉर 75,000। इसको याद रखने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको अकाउंट्स के लॉजिक से याद करें, और अकाउंट्स का लॉजिक भी है बहुत ही बेसिक लॉजिक बता रही हूँ आपको, एकदम 11th वाला, कि बढ़ाना है डेटर को तो डेबिट, कम करना है तो क्रेडिट, है ना। चलो 5th वाला देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे सी, जो 1 2 3 4 लिखा है उसमें से 1 और 4 डेबिट नोट और क्रेडिट नोट फॉर 45। ठीक है। Which of the following is correct in respect of supply of goods received by the firm which are taxable under the reverse charge? जो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है उसमें इनमें से क्या चीज आपको करनी पड़ेगी? तो क्या लिखा हुआ है? फर्म शैल इशू पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। हाँ, पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ता है। इशू इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स की केस में फर्म जो है वो इनवॉइस इशू कर सकती है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी सप्लाई नहीं कर रही है, वो रिसीव कर रही है, इट इज काइंड ऑफ रिसिप्ट।
फर्म शैल इशू रिसिप्ट वाउचर, नहीं रिसिप्ट वाउचर तो एडवांस रिसीव के टाइम दिया जाता है। एंड नॉट रिक्वायर्ड टू इशू, नहीं ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, फर्म शैल इशू पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर। सो ए वाला हमारा आंसर ऑप्शन सही रहेगा। 6th वाला, Sahil, a resident of Delhi, is having a residential property in Vasant Vihar, Delhi, which has been given on rent to a family for 50 lakhs per annum. Determine whether Sahil is liable to pay GST on such rent. तो आपने रेसिडेंशियल के लिए दिया है, फैमिली को रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए प्रॉपर्टी दी है, तो अब हमको देखना है कि इसके ऊपर हमको जीएसटी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो देख लेते हैं अपन क्या क्या ऑप्शन है। यस, द सर्विसेज बाय रेंटिंग इज टैक्सेबल, नो सर्विसेज ऑफ रेंटिंग आर इज एग्जेम्प्ट, नो सर्विस बाय इज नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई, साहिल इज इंडिविजुअल नॉट लायबल टू पे जीएसटी। ए और डी तो बाहर ही हो जाती है चीजें, ठीक है। नो के 2 ऑप्शंस हैं, तो आपको ये समझना है कि बी और सी ऑप्शन में क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो बी में लिखा है नो सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज एग्जेम्प्ट, और सी में लिखा है इट डज नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई। ये 2 अलग अलग बातें होती हैं। कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है कि नहीं और उसके ऊपर आपको जीएसटी देना है कि नहीं, ये 2 अलग अलग बातें हैं। तो बहुत ध्यान से हमको समझना है इस केस में कि क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि एग्जेम्प्ट है एंड डज नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई। तो सप्लाई तो होता है, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज सप्लाई, बट इट इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो 6th का आंसर हो जाता है हमारा बी, आंसर विल बी बी, क्वेश्चन नंबर 6 का। 7th पर आ जाते हैं हम। चलिए 7th, various taxes are being subsumed in GST to make one nation one tax. Out of the following, determine which taxes are being subsumed. Basic customs duty नहीं है, basic customs duty subsume नहीं हुई है। Taxes on lotteries and environment tax, इनमें से कौन सा टैक्स सबस्यूम हो गया है? तो हमारा taxes on lotteries जो है that has been subsumed, environment tax again is not subsumed, so हमारा आंसर आ जाएगा A, 7th का ए आ जाएगा। थ्योरी क्वेश्चन है जीएसटी के, मोस्टली थ्योरी है और आते भी थ्योरी ही है ज्यादातर, इसलिए टाइम कम लगेगा हमें, जल्दी जल्दी हमारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, गुड्स इंक्लूड्स, गुड्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स अटैच्ड टू द लैंड एग्रीड टू बी सीवेड बिफोर सप्लाई, मनी एंड सिक्योरिटीज। तो अगेन स्टार्टिंग की एकदम जो फर्स्ट चैप्टर में हम गुड्स की और सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उससे हमें याद करना पड़ेगा कि गुड्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो गुड जो है, गुड्स में आप एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, मनी और सिक्योरिटीज, इन दोनों में से क्या इंक्लूड करते हो? तो एक्शनेबल क्लेम्स आर इंक्लूडेड, यस। ग्रोइंग क्रॉप्स अटैच्ड टू द लैंड एंड एग्रीड टू बी सीवेड बिफोर सप्लाई, यस दे आर इंक्लूडेड। मनी और सिक्योरिटीज को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया जाता है, तो 3rd और 4th नहीं रहेगा, 1 और 2। तो ऑप्शन हो जाता है हमारा सी, एक्शनेबल क्लेम्स एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, दोनों चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं, लास्ट ऑप्शन है 9, मतलब लास्ट वो है हमारा ऑब्जेक्टिव। Mr. Z of Himachal Pradesh starts a new business and makes the following supplies in first month. Intra-state supply of taxable goods amounting to 17 lakh, supply of exempted goods amounting to 1 lakh, interstate supply of taxable goods amounting to 1 lakh. Whether Z is required to obtain registration. तो टोटल अगर हम टर्नओवर निकाल लेते हैं एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल, इंटरस्टेट मिलाकर, तो टोटल टर्नओवर हो रहा है 19 लाख। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स हो रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स है, तो आपको वैसे भी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा कंपलसरीली। तो आप रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्रॉस करो या नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपन, लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज थ्रेशोल्ड इज क्रॉस्ड, लायबल टू ऑब्टेन, नॉट लायबल टू ऑब्टेन एज ही मेक्स एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। हाँ, ये बात सही है कि एग्जेम्प्टेड सप्लाईज अगर आप करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन वो तब जब आपकी सारी सप्लाईज एग्जेम्प्ट हो, है ना, आपकी सारी में से कुछ सप्लाईज एग्जेम्प्टेड, तो वो प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। Miss Z is liable and Mr. Z is liable to make as he makes the interstate supply of goods. करेक्ट, सी ऑप्शन सही है हमारा। तो हमको अभी यहाँ पे टर्नओवर और ये देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम चाहें तो लिमिट वाली चीज भी ध्यान रख सकते हैं। एग्जाम में तो हमको क्रॉस चेक करना ही है, लेकिन ये ध्यान रखना सिर्फ लिमिट मत देखना। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं, मेन तो बेसिक कंडीशन तो टर्नओवर की है, पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाले भी जो पॉइंट्स हैं उनको भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है या हो रही है जो भी है, पर उसी के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि कंपलसरी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है पर कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है जिसके कारण अब आपको कंपलसरी रजिस्टर होना
जरूरी हो जाएगा। सो वो आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा कोई पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में आप रजिस्ट्रेशन की लिमिट नहीं भी चेक करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो यहाँ पर हमारे ये ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट होता है जीएसटी का। इतना आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर लीजिए, नोट डाउन करके रख लीजिए। ऐसे कैलकुलेशन पोर्शन के क्वेश्चंस नहीं हैं, मोस्ट ऑफ हमारे थ्योरी है, तो इनको पहले आप नोट करके रख लीजिए। समझ लेते हैं, अगर कहीं पर कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल हम डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। 4-5 क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी से ही हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Wedding Bells, a wedding photographer has commenced providing pre-wedding photo shoots in Jaipur from the beginning of current financial year 2021। इसी साल से शुरू किया है, पिछले साल मतलब हमारा कोई भी बिजनेस नहीं था। It has provided the following details of turnover for the various quarters till December, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, टोटल टर्नओवर कितना हो जाता है? 90 लाख का टोटल टर्नओवर हो जाता है। You are required to assume applicable rate as 18%. Wedding Bells wishes to pay tax at a lower rate and opts for composition scheme. You are required to advise whether it can do so and calculate the amount of tax payable for each quarter। ठीक है, सबसे पहले तो जो कंपोजिशन स्कीम है, जो सप्लायर्स के लिए कंपोजिशन स्कीम मतलब सर्विसेज के लिए जो लाई गई है, उसका प्रोविजन क्या कहता है कि पिछले साल अगर आपका टर्नओवर हमारे मतलब 50 लाख से अंदर था, एग्रीगेट टर्नओवर अगर 50 लाख तक था तो आप ऑप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर पिछले साल भी इसका कोई बिजनेस था नहीं, इसी साल से बिजनेस शुरू हो रहा है, तो हाँ ऑप्ट तो ये कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्ट अगर आप करते हो तो जो आपकी फर्स्ट वो लिमिट रहेगी जब तक आपको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं थी, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं कलेक्ट करना है। दैट अमाउंट विल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, बट इट विल बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द 50 लाख। मतलब वापस से समझ लेते हैं एक बार, टर्नओवर पिछले साल का तो देख लिया, तो इस साल आप ऑप्ट तो कर सकते हो रजिस्टर करते समय, पर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी कब आएगी? 20 लाख के ऊपर। तो इस साल 20 लाख तक तो आपको रजिस्टर ही होने की जरूरत नहीं है। फिर रजिस्टर होते वक्त आप कंपोजिशन ऑप्ट कर लो। जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो टैक्स कैलकुलेशन का रूल क्या है कंपोजिशन में, सर्विसेज वाले कंपोजिशन में, कि जब तक आप 50 लाख की लिमिट के अंदर हो 3% सीजीएसटी एसजीएसटी के हिसाब से आपको पे करना है, टोटल 6% पे करना है। जैसे ही आपका 50 लाख का लिमिट इस साल क्रॉस हो जाता है, बचे हुए पे आपको रेगुलर नॉर्मल एप्लीकेबल टैक्स रेट के हिसाब से पेमेंट करना है। यहाँ पर ये जो 50 लाख की बात हो रही है, इस 50 लाख को कैलकुलेट करने के लिए आप पूरा जीरो से कैलकुलेशन करते हो, मतलब इस साल का पूरा टर्नओवर इंक्लूड किया जाएगा। हाउएवर जो शुरुआत का टर्नओवर है, जितने पीरियड के लिए उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं थी, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट तक, उतने अमाउंट पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं क्या लिखा है। चलो रीड आउट कर लेंगे एक बार आंसर्स। सो हमें लिखने का भी तरीका समझ में आएगा। सेक्शन 10(2)(a) ऑफ सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड्स दैट टर्नओवर लिमिट ऑफ 50 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर बिकमिंग एलिजिबल। वेडिंग बेल्स ने नया ही शुरू किया है, तो हाँ वो रजिस्टर तो हो सकता है। Wedding Bells is eligible for composition scheme. A registered person opting for composition shall pay 33% of the turnover of supplies of goods and services. Further, Wedding Bells becomes eligible for registration when the aggregate turnover exceeds 20 lakhs. By registering, Wedding Bells can opt for composition scheme. The option of a registered person to avail composition shall lapse with the effect his aggregate turnover exceeds 50 lakhs. However, for the purpose of determining the tax payable under composition scheme, the expression turnover in a state shall not include the value of supplies from the first day of April up to financial year up to the date from which the person becomes liable. Thus, for determining the turnover for payment of tax पेमेंट की बात हो रही है, शुरुआत के 20 लाख इंक्लूड नहीं करे जाएंगे। चलो तो हम समझ लेते हैं। टोटल हमारा टर्नओवर दिया है 20 और 30 और 40 शायद ना, हाँ, तो टोटल हमारा टर्नओवर हुआ है 90। जब आप टैक्स कैलकुलेशन की बात करोगे तो जो स्टार्टिंग का 20 लाख है, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन जैसे ही आपका 50 लाख क्रॉस हो जाता है, एज सून एज यू क्रॉस 50 लाख, आपको एप्लीकेबल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। तो इस 50 लाख के लिए इस 20 को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो शुरुआत का चलो टैक्स निकाल लेते हैं। जो शुरुआत का फर्स्ट क्वार्टर है उसके ऊपर तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। जब आपका टर्नओवर 20 लाख तक है, नो टैक्स इज टू बी पेड, 0%। नेक्स्ट 50 लाख तक मतलब 30 लाख और 30 लाख आप कंपोजिशन में रहोगे। जैसे 30 लाख क्रॉस हो जाएगा आप कंपोजिशन से बाहर हो जाओगे। तो नेक्स्ट 30 लाख, जो नेक्स्ट हमारे 30 लाख है उसके ऊपर आप 33%
3% के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। 6% CGST, 3% CGST, 3% SGST, टोटल 6%। और बचा जो बाकी का 40 lakhs, नेक्स्ट 40 lakhs, तो समझ रहा होगा आपको 50 लाख की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए मैंने इस 20 लाख को इंक्लूड किया है, पर टैक्स में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके ऊपर आप क्लेम कर सकते हो, 40 लाख के ऊपर आप क्लेम करोगे, आप टैक्स चार्ज करोगे 18% के हिसाब से, जो रेगुलर आपके ऊपर एप्लीकेबल रेट है वो। तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द टैक्स। बाय द एंड ऑफ जुलाई द क्वार्टर एग्रीगेट टर्नओवर रीचेस 50 lakhs, consequently the option to avail composition scheme shall lapse, एंड उसके बाद जितना भी टर्नओवर आपका होगा, तो यहाँ तो 3 ही क्वार्टर्स दिए हैं, अगला लास्ट क्वार्टर एक और आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, उसका भी जितना भी टर्नओवर रहेगा उस पूरे पर 18% के हिसाब से टैक्स आपको देना है। चलिए आ जाते हैं 11th पर। Mr. Priyam, director of Sun Moon Company Limited, provided service to the company 1,25,000. Briefly discuss whether GST is applicable. If yes, who is liable to pay? Mr. Priyam is an independent director and not an employee. Independent director है, employee नहीं है। तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो डायरेक्टर सर्विसेज होती है वो अगेन टर्म्स एंड अग्रीमेंट पे डिपेंड करती है। अगर वो इम्प्लॉय शो किया जा रहा है, इम्प्लॉय वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो फिर वो इम्प्लॉय होने के कारण आपकी सप्लाई के उसमें से बाहर हो जाएगा, आपके शेड्यूल 3 में चला जाएगा कि एम्प्लॉय सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। और अगर जो डायरेक्टर के सर्विसेज है, कंपनी और डायरेक्टर के जो अग्रीमेंट्स है वो प्रोफेशनल नेचर के हैं, वो सैलरीड एम्प्लॉय जैसे नहीं है, वो 192 के सैलरी एम्प्लॉय वाले केस में कवर नहीं होकर 194J में मान लो कवर हो रहे हैं फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज और फॉर डायरेक्टर सर्विसेज टू दी कंपनी, देन जीएसटी लायबल रहता है। और जीएसटी पे किया जाता है रिवर्स चार्ज में। तो इसमें सर्विस रिसीव कौन कर रहा है? सर्विस रिसीव कर रही है कंपनी, प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्टर अपनी डायरेक्शंस देकर, अपने एडवाइसेस देकर, और रिसीव कर रही है कंपनी। तो यहाँ पर हमारे टैक्स पेबल किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कंपनी के ऊपर। तो फर्स्ट केस में आपको दिया हुआ है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉय इन कोर्स ऑफ रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ऑफ सर्विसेज, दैट इज शेड्यूल 3, जो नेगेटिव लिस्ट जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन लिeu of remuneration are clearly outside the schedule 3 and are therefore taxable. Further, such remuneration is taxable in the hands of company on reverse charge basis. तो क्वेश्चन में लिखा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो 192 मतलब सैलरी वाला केस अप्लाई नहीं होगा। 192 सेक्शन में इनकम टैक्स का कोड कर रही हूँ, ठीक है? 192 194J है ना, TDS पढ़ा है अपन ने। तो ये वो वाली चीज हो जाएगी कि टैक्स लगेगा, और लगेगा किसको? रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज मतलब कंपनी। नेक्स्ट वाले में आपको क्या बोला है? सेकेंड वाले केस में आपको बोला है अज्यूमिंग Mr. Priyam is an executive director, that is an employee of Sun Moon Company Limited, Private Limited. Out of the total remuneration 60,000 is declared as salary, उस पर TDS भी 192 में काटा गया है। However 65,000 को अलग से शो किया गया है, प्रोफेशनल सर्विसेज की जैसे शो किया गया है, और 65,000 पर 194J के हिसाब से टैक्स काटा गया है। अगेन वही लॉजिक जो भी थोड़ी देर पहले बात करी, वही लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होगा। कौन सा लॉजिक? कि अगर जो सप्लाई आपने किया है वो एम्प्लॉय रिलेशनशिप का है, तो वो नेगेटिव लिस्ट के कारण जीएसटी से बाहर हो जाएगा। अगर वो सप्लाई आपका एम्प्लॉय रिलेशनशिप का नहीं है, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी लगेगा, और जीएसटी देगा कौन? रिवर्स चार्ज में कंपनी देगी। तो इस केस में 60,000 सैलरी जैसे दिया जा रहा है, उस पर टीडीएस वैसा ही कटा है, उसका एग्रीमेंट पूरा वैसा ही बना हुआ है। तो जो सैलरी वाला पार्ट है वो नेगेटिव लिस्ट में चला गया, बचा जो 65,000, 125 में से 60 गया, बचा 65,000। ये 194J का केस हो रहा है, प्रोफेशनल सर्विसेज का केस हो रहा है। मैनेजर आप जो भी आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसको कंपनी ने पेमेंट किया है फॉर द सर्विसेज, तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर कंप्लायंस शिफ्ट हो जाएगा फॉर 65,000। पिछले वाले में पूरा ही 125 ही आउटसाइड द एग्जाम मतलब आउटसाइड द नेगेटिव लिस्ट था, तो पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा। इसमें 60,000 को आउटसाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पूरे सैलरी वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो चलो पढ़ लेते हैं। Further, the part of employee directors remuneration is declared separately other than salaries. Fees for professional services are treated as considerations providing services which are outside the scope of Schedule 3 and therefore taxable. Schedule 3 से बाहर हो गया और taxable है। The receipt of the said services is liable to discharge the applicable GST on it in the reverse charge basis. जो recipient है, that is ले कौन रहा है? कंपनी, तो कंपनी पेमेंट करेगी। 60,000 इज डिडक्टेड एज सैलरी, 192 से टैक्स भी काटा है, तो इसके ऊपर आपको कोई टैक्स जीएसटी में देने की जरूरत नहीं है। ये एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में आएगा, तो ये शेड्यूल 3 में आके बाहर हो जाएगा। बचा फर्दर 65,000 डिक्लेयर्ड सेपरेटली अंडर अदर देन सैलरीज,
इसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये शेड्यूल 3 का केस नहीं होगा क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं बन रही है सामने वाले के साथ आपकी, तो आप एम्प्लॉयर रिलेशनशिप बोल के बाहर नहीं हट सकते हो। इसमें आपको जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा और पे किसको करना पड़ेगा, कंपनी को अगेन, है ना, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो रहा है। चलिए 12th वाला देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन नंबर 12, Miss Kashi is a registered intrastate supplier of goods in Haryana. During the months of August and September, she was out of station on a religious pilgrimage with her family for 55 days. Thus no business was transacted. Miss Kashi is of the opinion कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो GSTR 3B भरने की कोई जरूरत नहीं है। However, tax consultant had advised her to file nil GSTR 3B. तो अगेन हाँ, हमने पढ़ा है रिटर्न्स में निल रिटर्न्स भरना भी कंपलसरी होते हैं। एक बार अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको सारे रिटर्न्स भरने पहले ही खाली भर दो, पर भरने हर महीने के। ऐसा नहीं रहेगा कि इस महीने सर्विस नहीं हुई तो चलो इस महीने छोड़ दिया, ऐसे करके आप नहीं कर सकते हो। तो क्या बोला गया है, एडवाइस गिवन इज करेक्ट। Filing 3B is mandatory for all normal and casual tax person even if there is not a single business activity. Therefore हाँ, आपको भरना पड़ेगा, nil GSTR 3B भरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, सेकंड पार्ट दिया है, will your answer change if Miss Kashi was placed an order for some purchases which has been received and she intends to take input tax credit. Again input tax credit लेना है तो nil रिटर्न नहीं जाएगा आपका, आपको एक प्रॉपर पूरा रिटर्न जैसे भरते हैं 3B उस तरीके से भरना पड़ेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर, nil 3B की मतलब कोई एंट्री नहीं है, nil का मतलब होता है जीरो, nil कुछ नहीं है। अगर वो क्रेडिट लेना चाहती है तो then it will be no longer a nil report since Miss Kashi has received certain purposes she cannot file nil GSTR 3B और उसको आपको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, GSTR 3B में शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 3 मतलब C वाला पॉइंट जो है वो देख लेते हैं अपन। Assuming A, Miss Kashi does not have internet facility and no facilitation center, whether no return is furnished in absence of द मीन्स टू फाइल रिटर्न, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मान लो आप किसी गांव में रह रहे हो, आपके पास इंटरनेट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका आप उससे भाग नहीं सकते हो कि इंटरनेट नहीं मिल रहा था इसलिए सर हम रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, आप SMS के थ्रू भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो क्या लिखा है देखो, C 13th का C, GSTR 3B कैन बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द पोर्टल either directly or through a facilitation center. Further, nil GSTR 3B can be filed through SMS using the registered mobile number. तो आप SMS से भर सकते हो। अगर आप कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा, इंटरनेट नहीं मिल रहा, तो आपको पूरा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, आप SMS से भी nil रिटर्न को फाइल कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर हमने ये चीज समझी क्वेश्चन का पूरा मतलब कि कब आपको इस केस में मतलब GSTR 3B के केस में निल रिटर्न भरना अलाउड है, कब नहीं है, और निल रिटर्न हम कैसे कैसे भर सकते हैं। चलो अब आ जाते हैं 13th लास्ट क्वेश्चन नंबर 13th। क्या दिया है अपने को, बाली लिमिटेड रजिस्टर्ड टैक्स पेयर प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम मुंबई एंड दिल्ली ऑफिस। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर दिल्ली का है 300 और मुंबई का है 250 करोड़। फॉर द मंथ ऑफ नवंबर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, बाली लिमिटेड प्रिपेयर्स डुप्लीकेट इनवॉइस एंड डज नॉट इशू ई इनवॉइस एज इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट क्रॉस द लिमिट। ब्रीफली एक्सप्लेन, इज बाली लिमिटेड करेक्ट? ऑल्सो एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ई इनवॉइसिंग इफ एनी। अगेन मैंने आपको इनकम टैक्स के टाइम पे भी ये चीज बताई थी और नॉर्मली भी मैं हर लेक्चर में बताती रहती हूँ ये चीज बच्चों को कि कोई भी चीज अगर चेंज हुई है, कोई भी चीज अगर अमेंडमेंट हुआ है किसी भी चीज में, तो वो बाय डिफॉल्ट जरूरी हो जाती है। जीएसटी हमने इनकम टैक्स में भी देखा, मैक्सिमम क्वेश्चन अमेंडमेंट पर ही थे। जीएसटी में भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ई इनवॉइसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है। ई इनवॉइसिंग बोलता है 500 करोड़ का लिमिट है, तो लिमिट तो क्रॉस हो चुकी है, तो ई इनवॉइसिंग तो कर लेनी चाहिए थी। अब देखते हैं कैसे लिखना है इसको। द व्यू टेकन बाय बाली लिमिटेड इज नॉट करेक्ट। All notified businesses except for specified classes of business with an aggregate turnover based on PAN, पूरे कंट्री का aggregate turnover, स्टेट का नहीं। दो बातें अलग अलग है, aggregate turnover and turnover in a state, है ना, दोनों में डिफरेंशिएट करना समझना है। In the preceding financial year exceeds greater than that is 500 crore are required to issue e-invoices. The eligibility is based on aggregate turnover on the common PAN. Thus the aggregate turnover is more than 500. आप ऐसे नहीं देखोगे कि दिल्ली मुंबई का कितना कितना, दिल्ली मुंबई था शायद ना स्टेट का नाम, मतलब जगह का नाम। हाँ, तो दिल्ली ऑफिस मुंबई ऑफिस अलग अलग नहीं देखा जाएगा, दोनों को आपको साथ में देखना है। पैन बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। तो फर्दर ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल, देयर इज नो नीड ऑफ इशूइंग इनवॉइसेस इन डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट। ई इनवॉइस है, नंबर डाला आपके सिस्टम पे जनरेट हो जाएगा,
आपको अलग अलग कॉपीज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हाँ, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। डिपार्टमेंट के लिए एडवांटेज है, चेक रखना आसान है। दूसरी चीज सहूलियत हमारे लिए है, एक बार हम डिटेल भर देंगे, हमारे सारे रिटर्न ऑटोमेटिकली भराए जाएंगे, बार बार डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्या क्या एडवांटेज, तो पेपरलेस ट्रांजेक्शन रहेंगे। सो एडवांटेजेस हैं, एक्यूरेसी है, अर्ली पेमेंट रहेगा, इन ई इनवॉइसिंग फैसिलिटेट स्टैंडर्डाइजेशन, तो इसीलिए बहुत ज्यादा पेमेंट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, टाइमली पेमेंट हो जाएगा। कॉस्ट रिडक्शन, एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है कॉस्ट रिडक्शन। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ टैक्स इवेजन, जो अभी हमने बात करी, फेक इनवॉइसेस नहीं बन पाएंगे, और इलिमिनेशन ऑफ फेक इनवॉइसेस, वही चीज, एंड पेपर एलिमिनेशन होगा। सो बेसिकली आप एक बार आपका इनवॉइस का डिटेल डालोगे, ऑटोमेटिकली जहां जहां पर इनवॉइस की जरूरत होती है, ई वे बिल हो गया या ई वे बिल के अलावा और भी कहीं पर भी अगर आपको आपकी इनवॉइस की डिटेल की जरूरत है, आपका सिर्फ एक जो नंबर जनरेट होगा, आप अगर वो भी डाल दोगे तो भी आपका इनवॉइस पूरा का पूरा ओपन हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द कंडीशंस टू बी केप्ट इन माइंड फॉर ई इनवॉइसिंग। अगेन, ई इनवॉइसिंग नया है तो इम्पोर्टेंट है। विद दिस वी कंप्लीट द आरटीपी ऑफ जीएसटी एज वेल। सो यहाँ पर आप प्रॉपर्ली इन चीजों को सॉल्व करके देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, मेनली लिख कर देखिए, क्योंकि थ्योरी है, लिखना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत आती है, तो देन वी कैन डिस्कस। सो विद दिस वी कंप्लीट द जीएसटी पोर्शन ऑफ आरटीपी एंड डीटी तो हम पहले ही समझ चुके थे। आपकी प्रिपरेशन जारी रखिए, प्रिपरेशन चलने दें अच्छे से। कहीं पर भी आपको कोई हेल्प रिक्वायर्ड है, वी कैन डिस्कस रिलेटिंग टू प्रेजेंटेशन और रिलेटिंग टू एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ इशू, लाइक ओवरऑल 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट या ऐसा कुछ भी अगर हमें जनरल भी डिस्कशन करना है, वी कैन डू दैट, दैट्स नॉट एन इशू। सो बिल्कुल पढ़ाई चलने दें, प्लस साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखें। कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी सेफ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, घर में रहें, शांति से अच्छे से पढ़ाई करें, घर पे खुद का भी ध्यान रखें, सब लोगों का ध्यान रखें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट्स।